So in yesterday class, we have discussed about the what are different types of needles. वो हमने डिस्कस किया था कल के क्लास में कि कौन कौन से टाइप्स के needles होते थे. So that is your latch needles and compound needle and bead needles. And now today we will discuss about the basic actions or basic knitting cycle of your needle. So that could be your latch needle, that could be your spring beaded needle, or that could be your compound needle. So we'll see how the loop formation has been taken place in case of this knitting. So if you see the cycle, if you see here, this is the basic knitting action of your needle has been here. So this is the initial position, or we can normally call it as the rest position of your needle. And in that case, how, if you see, this is your previous loop has been formed, which is resting on your stem part of your needle. See here, this is your needle, but this is your spring beaded needle. That could be your latch needle also. Now we'll see the basic knitting cycle in the any of these needles. That is your spring beaded needles. यहाँ पे जो दिख रही है, this is your spring beaded needle is here. So this is the initial position we normally called as your rest positions, where we can see that there is a previously formed loops has been seen from this figure, which is held on your stem part of your hook. At the next cycle or next position is, if you see here, this loop has been cleared down or has been taken on below onto the stem part, and from your needle hook to the lower position on your needle stem. In third, see the new yarn has been fed into the hook part of your needle. If you see this third part, the new yarn has been fed into the needle hook at the higher position on your needle stem than that of your previous old loop. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, this needle has been going through the cam profile. तो cam के अंदर क्या होता है कि we have the different types of cams, so that will ultimately helping it to raise these needles up and down. The vertical movement that is done through your cam profile. So this is the third position where the new yarn has been fed, and at the fourth, if you see here, the yarn is formed into the new loop has been formed. तो इसके कारण क्या होगा, नया loop formation यहाँ पे taken place होगा. ये नया yarn हमने यहाँ पे feed किया है, so that is forming the loop. If you see the strip part, the hook has been closed down. This hook part of this needle has been closed. ये क्या हो रहा है, यहाँ से हमें external pressure जो है, pressure जो हम बोल रहे थे, ये spring beaded needle है. If you see, this is your spring beaded needle. So we need to have the external device which will press this hook part of your needle so that this hook part should be closed down. तो close होने के बाद क्या होगा, जो old loop थी, whatever the old loop which has been formed, so they will go through this. तो जो last 6 जो हम cycle में बोल रहे हैं, so उसमें क्या होगा, जो old loop होगी वो क्या होगी, knocking off होती है और knock off होते हैं हम उसको. So जो न्यू है वो तो यहाँ पे रह जाएगी स्टेम पार्ट के इधर, और जो नई जो ओल्ड लूप थी, सो दैट इज टेकन आउट ऑफ दिस हुक पार्ट, एंड ये नॉकिंग ऑफ और या कास्टिंग ऑफ बोलते हैं. सो दैट हैज बीन टेकन प्लेस. जो ओल्ड लूप दैट विल स्लाइड्स ऑफ द क्लोज्ड हुक ऑफ योर नीडल, एंड इट इज कॉल्ड एज अ कास्टिंग ऑफ और नॉकिंग ऑफ. And at the last, this old loop now hangs from your feet of your fully formed new loop, and the knitting cycle starts again. तो अभी ये हो गई तुम्हारी पूरी साइकिल कंप्लीट होगी. ओल्ड लूप जो थी, so वो क्या होगी, that is hanging out from your feet part of your fully formed new loop. ये हो गई ओल्ड लूप, यहाँ पे आ गई. एंड जो नई जो हमने लूप फॉर्मेशन की थी, that is coming on the part of your hook part.
तो ये साइकिल क्या होगी, जैसे अभी क्या होगा, थोड़ा बहुत नीडल ऊपर होगी, ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो इस साइकिल में क्या हो रहा है, दिस इज द रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन होने के बाद क्या होगा, जो ओल्ड लूप है वो नीचे चले जाएगी, एंड इन थर्ड पार्ट द न्यू yarn has been fed into the needle hook at the higher positions, and the new loop formation has been taken place, and at the fifth you can see this, the hook has been closed down, and due to this the casting of your old or previous loop has been taken place. So ये ऐसे साइकिल कंटिन्यू रहेगी इन केस ऑफ ऑल दिस नीडल्स। तो ये सेम साइकिल सारे इसमें चीज में रहेगी। So that we have seen the basic knitting action of your needle in case of beaded needle. तो ये beaded needle में जो हमने देखा कि उसमें क्या सिंगल तुम्हारा हुक है। So it is one of the simplest or cheapest needle which has been manufactured and from your single piece of metal. तो इसमें क्या है, एक एडवांटेज जो है उसमें एकदम फाइन मशीन गेज भी बना सकते हैं, यानी इसमें क्या है नीडल डेंसिटी जो है दैट कैन बी इंक्रीज, यानी मशीन गेज हम बढ़ा सकते हैं, दैट कुड बी वी कैन गो अप टू दी 60 नीडल्स पर इंच। एंड उसमें इफ यू सी, बट वही है कि वहां पे एक डिसएडवांटेज जो है दैट इज योर वी नीड टू हैव द एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच विल कीप दिस नॉकिंग ऑफ और क्लोजिंग, और क्लोज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वो डिवाइस लगना पड़ेगा। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर बेडेड नीडल व्हिच इज यस। तो यहाँ पे वही बोला है कि व्हेन वी आर यूजिंग दिस बेडेड नीडल, उसकी जो एक्शन होती है दैट इज इन द रेसिप्रोकेटेड in the needle bed, and this action is collection of collective one because the problem of individual pressing and needle movement has been taken place. तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल नीडल्स को हमने क्या करना पड़ता है, we need to press it. तो नीडल का जो पार्ट है we need to press it, so that pressure we need to be required for individual needles. So that is the disadvantage of your bedded needle. So nowadays we are basically going with your lash needles. तो ये बेडेड नीडल जो है उसके 5 डिफरेंट मेन पार्ट्स हैं। इफ यू सी, ये एक जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज योर स्टेम पार्ट, दिस इज योर हुक पार्ट, दिस इज योर बेड पार्ट, दिस इज योर आई पार्ट, एंड द फिफ्थ वन इज यू कॉल्ड एज द टैंक। ये जो है दिस इज योर shank portion of your bedded needle. एक हो गई stem, first one is your stem, second one is your head portion or hook portion, और third one is your beard portion, fourth one is your eye, and fifth one is your shank. So what is the main purpose of this all these parts is the जो stem part था which is around which the needle loop has been formed. तो ये जो हमने अभी needle जो फॉर्मेशन की साइकिल देखी थी उसमें needle loop फॉर्मेशन के इसमें ये तुम्हारा stem part हेल्प कर रहा है because the loops has been taken over on your stem part of your needle. Head part में क्या था, where the stem is turned into the hook to draw the new loops through the old loops. यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो new loop है we need to draw this new loop through the old loop. ये काम यहाँ पे head portion में हो रहा था. This is the head portion where we need to draw your new loop through the old loop. So that is taken place at your head part of your needle. The third part is your beard, which is the curved downward continuation of your hook, which is used to separate the trapped new loop inside from your old loop as it is slides of the needle beard. तो यहाँ पे जो देखा था this is your curved downward continuous path by which we need to, which is used to separate your trapped new loop inside from your old loop. तो old loop वहां पे क्या होती है, casting up होती है through this beard part.
एंड द फोर्थ पार्ट जो है दैट इज योर आई या ग्रू कट है, ग्रू जो है दैट इज कट इन द स्टेम टू रिसीव द पॉइंटेड टिप ऑफ योर बियर्ड व्हेन इट इज प्रेस। तो ये जो एंड इनक्लोजिंग ऑफ योर न्यू लूप हैज बीन टेकन प्लेस। तो ये हो गई तुम्हारी आई पार्ट, और जो ग्रू यहाँ पे कट जो स्टेम पार्ट में दिख रहा है, सो दैट इज अल्टीमेटली हेल्पिंग इन to receive the pointed tip of your beard when it is pressed and enclosing the new loop। तो ये लूप जो फॉर्म हो रही है उसको क्लोज करने का या ओपन करने का तुम्हारा वहां पे काम कर रहा है। एंड द फिफ्थ पार्ट इज योर शेंक पोर्शन which is maybe the bend for individual location in the machines or cast with the others in the metal layer। So this is the main element or main parts of your beaded needle। Now we'll see the knitting actions which has been taken place in case of bead needle we already seen। Now we'll go through the latch needles। So latch needles के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। The main features जो हमारे इसमें है, क्योंकि इसमें एक हुक पार्ट जो है, this is your hook part of your latch needle which draws and return the new loop। and second जो है that is just slot or socket which receive this latch blade, which is not illustrated here, but there is a slot or socket which is there which will receive this latch blade। तो फिफ्थ पार्ट जो है दिस इज द लैच ब्लेड, इसके अंदर एक सॉकेट होता है दैट इज योर लैच ब्लेड व्हिच लोकेट द लैच इन द नीडल। तो ये इसका काम होता है कि वी नीड टू इस नीडल के अंदर लैच लोकेट करने का काम यहाँ पे लैच ब्लेड का काम कर रहा है। एंड एट द थर्ड यू सी देयर इज अ this is your rivet which, और ये तुम्हारा होगी लैच। ये लैच क्या होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ओपन एंड क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्या एक्सटर्नल हमारे डिवाइस नहीं लगना पड़ेगा लैच ओपनिंग और लैच क्लोजिंग के लिए। डजंट नीड एनी एक्स्ट्रा प्रेशर डिवाइस जो विच हैज बीन यूज्ड इन केस ऑफ योर बैच स्प्रिंग बेडेड नीडल। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस लैच नीडल। ये तुम्हारा बर्ड पोर्शन होगा which is goes inside the cam track। तो इसके कारण ये तुम्हारी नीडल अप एंड डाउन मूवमेंट होगी। जो ये क्या होगी, ये बर्ड जो होता है ये तुम्हारे सिलेंडर जो कैम्स है उसके थ्रू पास होता है। सो ड्यू टू दिस ये जो तुम्हारे कैम की जैसे प्रोफाइल रहेगी उसके हिसाब से बर्ड क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। ड्यू टू दिस जस्ट दिस नीडल हैज बीन मूव अप एंड डाउन। सो ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है लैच स्पून्स। और ये तो इसमें जो नीटिंग एक्शन जो है जैसे हमने अभी देखा था, वी हैव सीन द नीटिंग एक्शन इन केस ऑफ स्प्रिंग बेडेड नीडल। नाउ विल सी द नीटिंग एक्शन इन केस ऑफ योर लैच नीडल। इट इज सिमिलर टू योर स्प्रिंग बेडेड नीडल बट समवॉट कैन सी हियर, जो मैं बोल रहा था ये कैम ट्रैक होता है। इफ यू सी दिस फिगर, ये तुम्हारी नीडल दिख रही है, दिस इज योर बर्ड पोर्शन, सी हियर दिस इज योर bird portion of your needle and which is going through this cam track। ये cam दिख रही है, ये देखो हर एक इंडिविजुअल नीडल्स का ये इसकी पोजीशन अलग अलग है। इसकी बर्ड देख सकते हो यहाँ पे, इफ यू सी दिस पोजीशन ऑफ योर बर्ड इनसाइड दिस कैम ट्रैक, ये जो है ना ये कैम के थ्रू ऐसे मूव होती है। कैम रोटेट जैसे तुम्हारा ये मूव करेगा नीडल कैम के थ्रू, तो उसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। और जो हमारी जो साइकिल चल रही है नीटिंग सेक्शन, क्योंकि उसमें नीडल अप एंड डाउन मूवमेंट होगी, तो नीडल अप एंड डाउन मूवमेंट होने के बाद तुम्हारा लैच क्लोजिंग और लैच ओपनिंग होगा। और जो ओल्ड लूप और न्यू लूप को जो ओल्ड लूप को कास्टिंग ऑफ करना है, सो दैट इज टेकन प्लेस थ्रू ड्यू टू दिस एक्शन ऑफ योर नीडल थ्रू दिस कैम प्रोफाइल। तो ये कैम की डिजाइन की कैम की प्रोफाइल के हिसाब से हमारा नीड बनना है, टक बनना है या मिस बनना है, सो दैट विल अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय योर कैम ट्रैक। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, तो इन फर्स्ट जो इनिशियल जो पोजीशन है इसमें, दिस इज योर रेस्ट पोजीशन, जहां पे हम देख सकते हैं कि ये पुराना ओल्ड लूप यहाँ पे रेस्ट हुआ है। एंड दिस इज योर डाउनवर्ड मोस्ट पोजीशन ऑफ योर नीडल।
This is your downwardmost position of your needle where the old loop has been seen here. अब क्या होगा नेक्स्ट में, क्या होगा नेक्स्ट साइकिल में, क्या होगा ये क्या होगा, जैसे ही हम नीडल ऊपर जाएगी द सेकंड साइकिल में, सेकंड जो पोजीशन है उसमें क्या हो रही है, नीडल क्या हो रही है, दैट इज टेकन अप. जैसे नीडल ऊपर जाएगी उसके कारण क्या होगा, दिस ओल्ड लूप हैज बीन टेकन डाउन. ओल्ड लूप क्या होगी, ये जो लैच को ओपन करेगी. जैसे ये ऊपर चला जाएगा नीडल ओपन होने के कारण क्या होगा, ड्यू टू द प्रेशर, ये क्या होगी, ओल्ड लूप क्या करेगी, दैट विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन योर लैच. सो ड्यू टू दैट द लैच ओपनिंग हैज बीन टेकन प्लेस. यहाँ पे देख सकते हो लैच ओपन हो गई एंड जो ओल्ड लूप है ये लैच के ऊपर यहाँ पे अभी इसकी पोजीशन है. अब जिस सेकंड साइकिल में, थर्ड साइकिल में क्या होगा, ये क्या होगा यार, जैसे और ऊपर चला जाएगा नीडल, क्योंकि ये तुम्हारी नीचे देखो ये कैम प्रोफाइल है, उसके कारण ये पोजीशन तुम्हारी चेंज होती जाएगी. जैसे कौन सी प्रोफाइल है उसके हिसाब से, कैम के प्रोफाइल के हिसाब से इसकी साइकिल चलेगी. सो इन द थर्ड पोजीशन इफ यू सी हियर, जो ओल्ड लूप था वो क्या होगा, नीचे ड्रॉप डाउन हो रहा है एंड यहाँ पे क्या हो रही है, ड्यू टू दिस एट द सेम टाइम वी कैन फीडिंग द न्यू यार्न. जितना ऊपर मोस्ट पोजीशन में क्या हो रही है, दो काम हो रहे हैं. एक तो हो रहा है कि नया यार्न फीड हो रहा है, न्यू यार्न हैज बीन फीड, एंड जो ओल्ड लूप जो थी वो क्या होगी, लैच के नीचे से चली गई है पूरी, दैट इज कम्स इनटू ऑन टू पार्ट ऑफ योर स्टेम पार्ट. अब फोर्थ में देख सकते हो क्या होगी, नई लूप तो हमने नया यार्न हमने फीड कर दिया है. अब उसके कारण जैसे हो रही कि ये जो नीडल है, नीडल की पोजीशन अब नेक्स्ट में क्या हो रही है, डाउन हो रही है. नीडल नीचे जाएगी तो नीडल नीचे जाने के कारण क्या हो रही है, यहाँ पे ये लूप फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो जाएगी और ये जो तुम्हारी ओल्ड लूप, ये जो लैच का जो पार्ट था वो क्लोज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये क्या होगी, जो ओल्ड लूप क्या करेगी, इसके नीचे से चली जाएगी एंड ड्यू टू दैट दिस लैच हैज बीन क्लोज. तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगाएगी लैच क्लोजिंग के लिए, तो ये लूप ही एक्चुअली उसमें लैच ओपनिंग और क्लोजिंग का काम कर रही है. एंड दैट विल आल्सो डिपेंड अपॉन योर कैम की जो प्रोफाइल है, उसके कारण लैच ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है. तो अभी जो ओल्ड लूप था उसके कारण क्या हो रही है, दैट इज एक्सर्टिंग योर प्रेशर ऑन योर लैच, सो दैट लैच विल बी हेल्पिंग इट टू क्लोज दिस हुक. तो ये क्या हो रहा है, क्लोज हो रही है एंड ड्यू टू दिस ओल्ड लूप हैज बीन टेकन प्लेस. एंड जो लास्ट में पोर्शन में क्या हो रही है, नॉकिंग ऑफ हो रही है. जो ओल्ड लूप थी सो दैट ये इसके ऊपर से चली जाएगी, ये देखो ये कास्टिंग ऑफ यहाँ पे टेकन प्लेस हो रहा है. तो ये सेम साइकिल हमारे सारे जो भी नीडल्स देखोगे उसमें होगी. तो इनिशियल में जो हमने देखा था, दैट इज योर रेस्ट पोजीशन वेयर द हेड ऑफ योर नीडल हुक इज लेवल विद द टॉप वर्ज ऑफ योर ट्रैक. सेकंड में क्या हो रही थी, लैच ओपनिंग हो रही थी. जो सेकंड हमने देखा था दैट इज योर लैच ओपन होगी, जो लैच पहले क्लोज थी वो लैच क्या होगी, सेकंड में ओपन हो गई. थर्ड में जो हो रही है योर क्लियरिंग हाइट. तो इसमें क्या हो रहा है, व्हेन नीडल रीचेस द टॉप ऑफ द कैम, क्योंकि उसमें वो टॉप पोर्शन है, एंड द ओल्ड लूप इज क्लियर्ड फ्रॉम द हुक एंड लैच स्पून ऑन द स्टेम. एंड फोर्थ में जो हो रहा था दैट इज योर यार्न फीडिंग एंड लैच क्लोजिंग. यू सी दिस फोर्थ पार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा था, लैच क्लोजिंग हो रही है एंड यार्न फीडिंग जो पार्ट जो हम देख रहे थे दैट इज द टेकन प्लेस इन दिस केस. एंड फिफ्थ में तुम्हारा नॉकिंग ऑफ टेकन प्लेस होगा एंड लूप फॉर्मेशन हैज बीन डन. तो ये तुम्हारी सारी साइकिल सारी केस में होगी. एक तो होगा फर्स्ट रेस्ट पोजीशन, सेकंड में लैच ओपनिंग, थर्ड में क्लियरिंग हाइट यानी लैच क्या होगा, ओल्ड लूप क्या होगी वो क्लियर होगी, फोर्थ में यार्न फीडिंग एंड लैच क्लोजिंग, एंड फिफ्थ में नॉकिंग ऑफ और कास्टिंग ऑफ. दिस इज द साइकिल ऑफ योर व्हिच हैज बीन टेकन प्लेस. तेरे स्कूटी करते घोड़े का चाव ज्यादा नहीं है स्कूटी मतलब यू शूट करो सारे. so that you get that chain water. You break the other side के सो कल तो ढीला था, ठीक है.
जी के मिला के लगता है। So the advantage of this slash needle is but the main advantage of it is being your self-acting or self-closing हम जो बोलते हैं, so self-opening और closing हो रहा है और loop control, so that the individual movement and control of your needle enables the stitch selection to be achieved. ये actually है, and it is ideally suited for your use with the computer control electronic selection devices. So this is ideal for this, क्योंकि इसमें क्या होगा, स्प्रिंग बेडेड में हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाने की जरूरत पड़ती है, so that is will not be suited for your computer control electronics selective selection devices. तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो ओल्ड लूप है that is cleared from your hook automatically when needle is lifted. इसमें जो पुराना जो ओल्ड लूप था that is cleared from your hook automatically when needle has been lifted, because the loop has been slide down inside the hook and connects with the latch or tumbler. So these are your self-acting needle. और next जो needle जो है that is your compound needle. So compound needles में हमारे actually basically two parts होते हैं. एक तो ये तुम्हारे latch हो गई और उसमें एक external तुम्हारा डिवाइस और जो कट इसमें लगा है देख सकते हो. So this is having the two separately control parts. One is your the open hook and the second is your the sliding closing element, that is your tongue, latch, piston और plunger. जो sliding इसको बंद करने का जो काम है इसका, that could be your tongue, latch, piston और plunger. So these two main parts are rises and falls as a single unit. तो ये देख सकते हो, we are having this two part, and another is your that is the closing device, that could be a plunger, tongue or latch. तो उसकी भी जो साइकिल है that is similar to your latch needle. I'll show here. ये तो हमारी साइकिल हमने देख ली थी, ये कैसे हो रहा था कि ओल्ड लूप, उसके बाद ये साइकिल जो थी तुम्हारी इसमें वो देख ली थी. सो देयर इज अ कंपाउंड नीडल में भी वी हैव द सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे देख सकते हो. इसमें भी यही होगा कि ये कास्टिंग ऑफ हो रही है स्टेम के नीचे से, और ये जैसे ऊपर आ जाएगा एक्सटर्नल जो तुम्हारा प्लंजर या लैच जो है, सो दैट इज क्लोजिंग दिस हुक एट द सेम टाइम. क्लोज होने के बाद ये क्या होगा, ये जो ओल्ड लूप है दैट इज कास्टिंग ऑफ होगी और न्यू लूप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे. सो दैट इज द सिमिलर टाइप ऑफ स्टिच फॉर्मेशन और जो लूप फॉर्मेशन हैज बीन टेकन प्लेस इन केस ऑफ योर स्प्रिंग बेडेड नीडल.